Everyone. Welcome back to our maths learning channel, that is Anju Maths Classes. In today's class, we are going to solve the first 10 most important questions of the average chapter in a very simple and exam oriented way. If you understand the concept of average but get confused while solving questions, then this session is going to be a complete game changer for you. I will explain every question step by step along with smart tricks and shortcut so that you can save time and improve your accuracy in the exam. So stay connected till the end of the video and make sure to take notes along the way. And yes, if you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe and press the bell icon so you never miss any of our math learning videos. So, without wasting any time, let's begin. Average chapter, the first 10 powerful questions. Now, let's start our first question, that is, a student calculate the arithmetic mean of the following five numbers 10, 15, 20, 25, and x. He found the mean is 15. Find out the value of x. So let's start to solve it. First of all, let our five number is 10, 15, 20, 25 plus x, and the total number is 5, and mean of all this number is 15. So now we will get the value of x. First of all, sum of all these numbers 10 plus 15 plus 20 plus 25, that is 70, plus x divided by 5 equal to 15. Let cross multiply 70 plus x equal to 15 into 5. 70 plus x equal to 75. X will be 75 minus 70. X equal to 5. That is option number 4. There will be right answer after option number 4. Okay. Our next question is the average of the marks obtained in a mock test by 8 boys was 50. So here is given average number 50 and number of total boys is 8, and by 2 girl was 80. The average marks of all 10 students were. तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 8 बॉयज ने टोटल कितना गेन किया है, एवरेज मार्क्स 50. सम ऑफ टोटल number of 8 boys equal to 8 into 50 equal to 400, and 2 girls
2 into 80 इक्वल टू 160। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स ने कितना गेन किया? 400 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 560 divided by 10, that is 56। तो ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the average weight of 5 girls is 20 kg, that of 3 girls is 15 kg, and that of the other 2 girls is 25 kg, then the average weight of all girls is। First 3 girls is 15, 5 girls average weight is 20 plus 15 girls, 3 girls average weight is 15 plus 2 girls average weight is 25. Total number of girls is 5 plus 3 plus 2, that is 10। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10, 195 divided by 10, that is 19.5 kg is our average weight। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल डेली सैलरी ऑफ द writers in gigs is 15,000. The average daily salary of a writer is 750। तो एक राइटर का डेली सैलरी कितना है? 750। और टोटल डेली सैलरी ऑफ द राइटर्स कितना दिया है? 15,000। तो ये क्या हो जाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ राइटर, नंबर ऑफ राइटर। $15,000 divided by डेली सैलरी 750, तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लिए नंबर ऑफ राइटर्स इन गिग्स फॉर गिग्स इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 20 बॉयज 5 are each of 1 meter 10 centimeter height, 10 are of 1 meter 20 centimeter, and rest of 1 meter 30 centimeter. The average height of all of them is। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज हाइट विल बी, टोटल कितने बॉयज है? 20 बॉयज, जिसमें से 5 का हाइट कितना है? अब इसका यूनिट हमें सेम रखना है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? 1.10 मीटर प्लस 10 इंटू 1.20 मीटर प्लस 1 रेस्ट 5 प्लस 10 15। तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग हो जाएंगे? 20 बॉयज है तो 5
प्लस 10, 15, तो 5 रिमेनिंग है, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 1.30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20, तो ये आ जाएगा आपका 5.5 प्लस 12 प्लस 13, 5 जो 65, 6.5 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 24 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1.20, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The average temperature of April, May, June and July month was 40 डिग्री। यहाँ देखिए हमें 4 months का एवरेज टेम्परेचर दिया 40 डिग्री। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मई, जून, जुलाई एंड दिसंबर was 35 डिग्री। If the temperature in April was 38, then find the temperature in दिसंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एवरेज टेम्परेचर 40 इंटू 4, टोटल नंबर ऑफ मंथ है 4, तो हम लोग इसका टोटल टेम्परेचर निकालेंगे, तो ये हो गया आपका 160 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। नेक्स्ट क्या बोला है, मई, जून, जुलाई एंड दिसंबर। टोटल टेम्परेचर हो जाएगा 35 इंटू 4 विल बी 140 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो मई से मई, जून भी कैंसिल हो जाएगा, जुलाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अप्रैल माइनस दिसंबर। अप्रैल माइनस दिसंबर इक्वल टू 160 माइनस 140 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ अप्रैल का दिया हुआ है कितना 38, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 38 माइनस 20 इक्वल टू दिसंबर, तो ये आ गया आपका 18 डिग्री। दिसंबर का टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। In 2021, the average monthly income of an employee was 3,000 for the first 9 months of the year. His average monthly income was 3,100 and for the last 4 months it was 4,500. His income in the 9th month of the year was, तो फर्स्ट 9 month total 12 months income
इक्वल टू 3000 इंटू 12, ये आ गया आपका 36,000। ये टोटल इनकम हो गया पूरे साल भर का। अब हमें क्या दिया है, फर्स्ट 9 मंथ एवरेज इनकम। फर्स्ट 9 मंथ एवरेज इनकम कितना दिया है, 3100 इंटू 9, तो टोटल इनकम आ जाएगा आपका 27,900। and last 4 month total income 4 into 4500 will be 18,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 9th मंथ का सैलरी कितना है। तो 9 मंथ का सैलरी निकालने के लिए फर्स्ट 9 मंथ सैलरी एंड लास्ट 4 मंथ सैलरी, टोटल कितना हो गया 13 मंथ। मतलब इसको हम लोग ऐड करके टोटल 12 मंथ सैलरी में माइनस करेंगे तो 9th मंथ का सैलरी हमारा आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 27,900 प्लस 18,000 माइनस 36,000, ये आ जाएगा 45,900 माइनस 36,000 इक्वल टू 9,900। ये हमारा 9th मंथ का क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा 9,900। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 9,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज ईयरली एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर द फर्स्ट 5 years is 25,700, for the next 2 years 24,900, and for the last 5 years 30,300. If the company is saved 53,200 during 12 years, the average yearly earnings of the company are। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज ईयरली अर्निंग कंपनी का कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्सपेंडिचर दिया है यहाँ पे कंपनी का, फर्स्ट 5 year, नेक्स्ट 2 years एंड लास्ट 5 year। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 5 into 25,700 plus 2 into 24,900 plus 5 into 30,300। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 1,28,500 प्लस 49,800 प्लस 1,51,500। The total
एक्सपेंडिचर 3,29,800। ये है कंपनी की टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमने निकालना है इफ द कंपनी सेव्ड 12 ईयर्स में कितना सेव करता है 53,200। तो टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा, टोटल अर्निंग इक्वल टू 3,29,800 3,29,800 प्लस सेविंग कितना है 12 ईयर्स में 53,200। तो ये हो गया 53,200। टोटल अर्निंग है आपका 3,83,000। तो एवरेज ईयरली अर्निंग क्या हो जाएगा, एवरेज ईयरली अर्निंग will be 3,83,000 divided by 12 equal to 31,970। ठीक है। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। 31,970 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन gigs for gig is 24,000. The average salary of 7 technicians is 30,000 and the average salary of the rest is rupees 18,000. The total number of workers in the workshop is। तो एवरेज सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे। सारे एवरेज सैलरीज को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग ले लेते हैं x। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं x। इसमें 7 टेक्नीशियन है और रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे वर्कर्स का सैलरी दिया हुआ है 18,000। इट मीन्स 7 वर्कर्स का सैलरी है 30,000 प्लस टोटल वर्कर में 7 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्कर आ जाएगा जिसका सैलरी है 18,000। इसका एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज कितना दिया 24,000। तो ऑल एम्प्लॉयज कितना है x है, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 24,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका
7 3 जा 21, 18,000 x माइनस 18 7 जा 126। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका 21, 1 2 3 and 4 प्लस 18,000 x माइनस 126 000 इक्वल टू 24,000 x। तो ये आ गया आपका, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 210 माइनस 126। तो ये आ गया आपका 24, 84 आ जाएगा इक्वल टू 24,000 minus 18,000 will be 24,000 minus 18,000 करेंगे तो आ जाएगा 6,000। इक्वल टू 6,000 x। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6,000 इक्वल टू x। x हमारा आ गया कितना 14। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए यहाँ पे 14। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, 14 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a man goes to the market from his house and returns house from the market at a speed of 10 km and 15 km respectively. Find out his average speed। तो देखिए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया। इसका फॉर्मूला मैंने आपसे शेयर किया था पिछले वीडियो में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है। जब भी कभी आपको दो स्पीड दिया हो और एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहे तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। तो इससे हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला भी है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना आपको डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, सिर्फ स्पीड दिया है। तो जब स्पीड ही दिया रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। देखिए 2 × 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15 इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25।
तो ये आ गया आपका 5 5 जा 5 6 जा 0, तो ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे 10। इसके बाद हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एग्जाम ओरिएंटेड हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।